Okay, okay, nice. Very good afternoon, everyone. Today we will study about organisms' response to abiotic factors. We have studied about lot of abiotic factors in our previous class, that is wind, water, temperature, soil, etc. etc. एंड वी स्टडीड कि उन फैक्टर्स का हम पर किस तरीके से असर हो रहा है. रीजन बीइंग हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्लेन एरियाज से तो कैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है. सिमिलरली इक्वेटर टू पोल्स की तरफ मूव करते हुए कैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है. just like that, soil has so many properties. Soil water is there, soil oil is there, soil air is there, and then you have a lot of variations in visible spectra and UV and infrared, that if talking about the light or photosynthetically active radiation. So continuing on to these things, what happens is कि आपके हैबिटेट में या आपकी सराउंडिंग में ये सारी चीजें जो इतनी ड्रास्टिकली चेंज कर रही हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं, क्या उन फैक्टर्स में आप इजीली विदाउट एनी मैनेजमेंट या विदाउट एनी एडप्टेशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्या आप उसको ऐसे ही जस्ट लाइक अ केक वॉक सर्वाइव कर सकते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स रहता है उन एबायोटिक फैक्टर्स के लिए. Coming on to our very first slide, abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time. So, how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions? What happens is, आप लोगों को ये पता था कि आपका नीट होने वाला है मई में, एंड इट इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मे, बट यू आर watching, you are observing that you don't have NEET exam. आप लोग कौन? The people who have just passed 12th class, or they have to give their board exams which are still pending. उन लोगों को पता था कि मई जून में हमारा नीट होने वाला है, लेकिन अब तो नहीं हुआ. अदर देन दैट, आपके बोर्ड एग्जाम्स 12th के होने थे लेकिन वो नहीं हुए. रीजन बीइंग देयर इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन in our surroundings. There is stressful condition in our habitat. What is the stressful condition? What are those unusual conditions prevailing? This is COVID-19. उसका इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से you people are feeling stressful, you have a fear in your mind and heart, you are not able to move easily outside your home, you are not able to cope up with the regular schedule, you don't have to go in offices and schools regularly, there is a lockdown. So ये सारी stressful conditions में क्या आप आराम से cope up या manage कर सकते हैं? No, you cannot. How and why? Because आप सर्वाइवल के लिए अगर नॉर्मल सिचुएशंस में रहेंगे, बिना मास्क लगाए बाहर जाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, आप अगर इफ यू फील लिटिल फीवर और समथिंग, जो तो पहले जैसे हम इग्नोर कर देते थे थोड़े बहुत फीवर को फॉर 1 or 2 डे, अगर उसको आप इग्नोर कर देंगे, देन इट माइट बी अ वेरी critical situation for you to manage and to survive in those conditions. Just like that, every organism face drastic change in their habitat and abiotic conditions prevailing in the habitat, due to which to manage and cope up with such conditions, with such unusual or stressful or unfavorable conditions, उनको कुछ steps उठाने पड़ते हैं. There are 4 major important steps. And what are they? Regulation, confirmation, migration, and suspension. Talking in a very layman language so that you could be able to understand the thing well, I will tell you how these 4 things are going to help you to manage in the stressful condition. एकदम जैसे हम आम आदमी को बताते हैं ना, किसी को who doesn't belong from science, उस तरीके से मैं आपको छोटा छोटा इनके बारे में बताने की कोशिश करती हूँ. Then we will go on their science. रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, गर्मी लग रही है, अभी गर्मियां हो गई हैं, इट्स ऑलमोस्ट जून,
तो आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बट यू नो कि आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट डू यू डू? उस गर्मी जब आपको सहन नहीं हो रही, देयर इज सो मच स्ट्रेस ओवर यू कि यार बहुत गर्मी है, क्या करूं क्या करूं. सो आप क्या करते हो? एसी ऑन कर लेते हो. क्या किया आपने? रेगुलेट कर लिया. किसको? उस गर्मी वाली स्ट्रेसफुल कंडीशन को. सिमिलरली कुछ टाइम के बाद ठंड आ जाएगी, आप लोग घूमने जाओगे, यू माइट गो टू मनाली, यू माइट गो टू रोहतांग. नहीं भी जाओगे, घर पे भी रहोगे, तो भी देयर विल बी विंटर सीजन, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा एनवायरमेंट में. वहां क्या होगा? अगेन यू विल फील स्ट्रेसफुल. क्यों? क्योंकि आपको ठंड लगेगी. आपने क्या किया? 5 6 7 8 कपड़े, बहुत सारे कपड़े पहन लिए, हीटर को स्विच ऑन कर लिया. व्हाट डिड यू डू? रेगुलेट कर लिया. किसको? जो ठंड लग रही थी उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को. सो फर्स्ट पॉइंट इज कवर्ड, दैट इज रेगुलेशन. नाउ समवन आस्क मी व्हाट इज कंफर्मेशन, बट आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट. तो कंफर्मेशन को मैं कैसे समझ पाऊंगी और समझा पाऊंगी? कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मुझे लग रहा था मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, बट मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूं. पर मैंने खुद को बहुत समझाया, मैंने कोशिश करी कि मैं दोनों चीजों को साथ साथ चलाऊं, दोनों चीजों को मैनेज करूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. व्हाट वाज हैपनिंग वाज वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन. स्ट्रेस हो गया था मुझे कि मैं क्या करूं, कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है, ये करूंगी कि ये करूंगी, ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसका तैयारी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों चीजें मैनेज होंगी कि नहीं होंगी. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने जाके अपने पेरेंट्स को बोला कि लेट्स डिस्कस, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करो और डिस्कस का सोल्यूशन निकालो, मैं स्ट्रेस नहीं झेल सकती. उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो आप करना चाहते हो बेटा वो करो, आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, उसकी तैयारी करो, अच्छे से अपने एम को सेट कर लिया है, उसकी तरफ, अपनी गोल की तरफ बढ़ो, तैयारी करके बढ़िया सिंगल साइडेड होके प्रिपरेशन करो, क्रैक करो. कंफर्म हो गया. क्या कंफर्म हो गया? जो स्ट्रेसफुल कंडीशन थी उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया, सिंगल साइडेड होके कंफर्म कर दिया कि अब यही काम करना है. कंफर्मेशन हो गई, स्ट्रेस दूर हो गया. नेक्स्ट, माइग्रेशन. मेरे को नीचे बहुत गर्मी, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है रूम में, बट मैंने बाहर ऑब्जर्व किया कि बाहर की कंडीशंस में व्हाट इज हैपनिंग इज कि टेम्परेचर बड़ा प्यारा है, मौसम बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश आने वाली है, बादल हैं, छांव है. अंदर मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घुटन हो रही थी. व्हाट आई डिड वाज, मैं बाहर चली गई अपनी छत पे. आई फेल्ट गुड, मेरा स्ट्रेस भी रिमूव हो गया. वाई बिकॉज आई माइग्रेटेड फ्रॉम द रूम जहां मुझे स्ट्रेस लग रहा था टू अ प्लेस जहां मैंने बेटर फील किया या जहां की कंडीशंस मुझे फेवरेबल लगी. दिस इज माइग्रेशन. देन व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस कि आप लोगों ने, आपको एक अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई कि आपकी कोई और क्लास साथ में हो रही है और उस वजह से आप लोग रेगुलर नहीं हो रहे हैं, बट आफ्टर दैट क्लास गेट्स ओवर तो आप लोगों ने तब भी रेगुलरिटी मेंटेन करी है. तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास को सस्पेंड कर दिया कि इनको यही इनके लिए सॉल्यूशन है कि आज जो मैंने सोचा था मैं इनको कराऊं एंड दे विल गेट बेनिफिटेड, वो मैं आज कराऊंगी नहीं, आई विल सस्पेंड द क्लास. मैंने क्लास को सस्पेंड कर दिया. स्ट्रेस दूर. क्यों? स्ट्रेस हो रहा था ना कि आप अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास, सो द क्लास हैज बीन सस्पेंडेड. This is what we mean by suspension. Now, seeing these terms with a scientific point of view is that, see the graph given on figure 13.3, that is a diagrammatic representation of organismic response. What happens here is, on y-axis they have taken internal level, on x-axis they have taken external level. एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से, इंटरनल लेवल के हिसाब से किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने आप को कॉप अप या मैनेज कर पाता है उस कंडीशन में, उसके बारे में ये ग्राफ है. सी द रेड लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज फॉर रेगुलेटर्स. क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल लेवल. एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, सो दे आर नोन एज रेगुलेटर्स एंड इसीलिए उनका ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस because external level is changing but their internal body temperature has been maintained and regulated by them. Then you have a green line for the conformers, because what do conformers do?
they cannot adjust in the external environment by maintaining an internal level. उन लोगों को एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है. एम्बिएंट टेम्परेचर की जो मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज दैट एम्बिएंट टेम्परेचर? The temperature of your surrounding, or you can say air temperature at the ground level, is known as ambient temperature. किसी पर्टिकुलर प्लेस का ग्राउंड लेवल पे जो एयर टेम्परेचर होता है, दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर. उसके हिसाब से कन्फर्मर्स अपना टेम्परेचर इंटरनल बॉडी का भी चेंज करते हैं. सी द ग्राफ, एक्सटर्नल लेवल बढ़ता जा रहा है, इंटरनल लेवल भी बढ़ता जा रहा है. दीज आर कन्फर्मर्स. देन यू हैव पार्शियल रेगुलेटर्स. उन्होंने क्या करा? दे ट्राइड कि एक लेवल तक वो लोग फ्लक्चुएट करते रहे, एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से इंटरनल लेवल उनका चेंज होता रहा, लेकिन देयर केम अ सिचुएशन जहां पे उन्होंने उसको मैनेज कर लिया और अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाए. दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स. क्योंकि पहले वो रेगुलेटर नहीं थे, बाद में वो रेगुलेटर बन गए, इसीलिए दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स. दिस इज द ग्राफ you need to remember for your exam point of view. This graph comes in your NEET or competitive exams. They ask you, कन्फर्मर्स को उन्होंने A मार्क कर दिया, पार्शियल रेगुलेटर को B मार्क कर दिया, रेगुलेटर को C मार्क कर दिया, एंड गिविंग दिस ग्राफ वो आपसे पूछते हैं कि बताओ A कौन है, B कौन है और C कौन है. तो आपको पता होना चाहिए. और वो कैसे पता होगा? जब आपको इसका बेसिक पता होगा कि कन्फर्मर्स का ये ग्राफ क्यों आया, रेगुलेटर का क्यों आया, पार्शियल रेगुलेटर का ये वाला क्यों आया. रीजन बीइंग, रेगुलेटर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कन्फर्मर्स नहीं कर सकते हैं, उनका चेंज होता है एक्सटर्नल के हिसाब से. पार्शियल रेगुलेटर्स पहले चेंजिंग में रहेंगे, लेकिन बाद में दे गेट कन्वर्टेड, उनकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और दो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को बाद में मेंटेन कर पाते हैं. सो पार्शियल रेगुलेटर का इस तरह का ग्राफ आया. गेट इट? Moving on to the more details of regulators. Regulators can also be termed as endotherms. Okay, regulators can also be known as endotherms. क्यों endotherms? एक तो regulator के लिए जो दूसरी term है वो endotherm है. Reason being, उनका जो internal temperature है that stays constant with respect to external environment. इसीलिए उनको बोलते हैं endotherms. कौन है endotherms? Birds and mammals and some lower vertebrates. See the fish given in the picture. Water loss is occurring through the skin. वो सी वाटर को ड्रिंक करती है. बट इट डज इज रेगुलेट करने के लिए एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट होता है उसके गिल्स से, एंड कंसंट्रेटेड साल्टी यूरिन वो पास आउट करती है दैट हैज कंटेन्ड आयंस लाइक Mg2+ एंड SO2-. तो वाया सच मैकेनिज्म्स that fish is able to regulate the body temperature according to the prevailing external environment. रेड और ब्लू लाइन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट दिया है, ठीक है, और जो ब्लू है दैट इज डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट है. तो बाय दिस दैट फिश इज रेगुलेटिंग हर बॉडी टेम्परेचर. सो व्हाट आर द रेगुलेटर्स? Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological or behavioral means, which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. This is the definition for regulators. क्या कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं. होम्योस्टेसिस का मतलब एक उनकी टेंडेंसी होती है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की. जो भी बाहर उनके फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी की एक स्टेडी इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को मेंटेन करने की टेंडेंसी, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. You would have read about this term in your very first chapter of class +1, the living world. Okay, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की ये जो टेंडेंसी है कि बाहर के फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर मीन्स की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हो रही हैं उस कंडीशन में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की, जिससे वो या तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रख पाएं या कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रख पाएं. दिस इज नोन एज रेगुलेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज रेगुलेटर्स. अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं
तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो नीचे आपको डायग्राम दिया गया है एक ह्यूमन बॉडी का कि सोलर बैंड रेडिएशन आती हैं, वो इवेपोरेट कर रहा है, कन्वेंशन भी हो रही है, पर्सपिरेशन भी हो रही है, उसके बाद कंडक्शन भी हो रही है, थर्मोरेगुलेशन भी हो रही है, रेस्पिरेशन करते हो आप, ओके, ऑल दीज थिंग्स। तो उससे मेंटेन जो आप कर पाते हो दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। और ऊपर जो फिश कर रही है दैट इज ओस्मोरेगुलेशन। All birds and mammals, lower vertebrates, they do so by this mechanism. Homo sapiens maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. समर्स में क्या होता है, हमें बहुत स्वेटिंग होती है। विंटर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, देन वी स्टार्ट शिवरिंग। लेकिन प्लांट्स में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, वो नहीं मेंटेन कर सकते अपना इंटरनल टेम्परेचर। बट ह्यूमन बॉडी में होता है, मैमल्स में होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जिसको आप इजीली समझ सकते हो कि मैंने जैसे कि बताया भी था कि जब विंटर्स होते हैं तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बहुत सारी जैकेट्स डाल रहे हो, यू यूज हीटर एंड ऑल, और आप मेंटेन भी कर पाते हो क्योंकि व्हाट हैपेंस इज मतलब इफ यू प्रोफ्यूजली स्वेट और या फिर इवेपोरेशन एंड कन्वेंशन जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू यू आर एबल टू मेंटेन। सिमिलरली समर्स में भी यू आर एबल टू मेंटेन दिस टेम्परेचर लाइक दैट, जबकि 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। क्योंकि जब समर की बात आती है तो आप प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहे हो, उस वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है क्योंकि इवेपोरेशन होती है स्वेटिंग की वजह से। जैसे कि जो डेजर्ट कूलर होता है, आपके घर में कूलर यूज होता है, उसमें भी क्या होता है ना, इवेपोरेशन होता है, जस्ट लाइक दैट। तो बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए व्हाट हैपेंस इज इवेपोरेशन अकर्स। सिमिलरली अगर हम विंटर की बात करें तो आपकी बॉडी में शिवरिंग होती है, और शिवरिंग को अगर हम कहें तो एक तरीके से वो एक एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो सके और वो आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेज कर सके। दिस इज एन एग्जाम्पल एंड वट यू हैव टू नोट इज दैट ऐसा इकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो मैमल्स हैं उनका सक्सेस, उनका यहाँ पे मतलब इस बायोस्फीयर में रहने के लिए जो वो अडेप्ट हो पाए या यहाँ पे उनकी जो सक्सेस हो पाई, they are alive, that is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert. There are a lot of army officers who constantly give their duties being in Antarctica, Sahara Desert, बहुत salty areas में and all. तो इन सारी कंडीशंस में जो ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेंटेन रख पाते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ऐसी कंडीशंस के बाद भी, दैट इज द स्टोरी ऑफ सक्सेस ऑफ मैमल्स, ऐसा कुछ इकोलॉजिस्ट्स का मानना है। Then you have conformers. Conformers are also known as ectotherms. Conformers are also known as ectotherms. Reason being their temperature changes with the external environment. For example, there are many reptiles, amphibians and fish. Okay, given is a starfish and snake. तो ये क्या है, ये कन्फर्मर्स हैं, दे आर नोन एज एक्टोथर्म्स। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड लगभग सभी प्लांट्स में व्हाट हैपेंस इज बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ, उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट एयर, वाटर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। एंड ऐसे ही कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिंपली कन्फर्मर्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देयर आर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, या फिर स्नेक्स और मैम्बा। ये जो गिवन पिक्चर है ब्लैक स्नेक की, दैट इज मैम्बा। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर हम कुछ छोटे एनिमल्स की बात करें जैसे श्रूज होते हैं या हमिंग बर्ड्स होती हैं, व्हाट हैपन्स इन देम इज हीट लॉस या हीट गेन जो है वो उनका फंक्शन होता है एज विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी सरफेस एरिया। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से वो फटाफट अपनी बॉडी हीट को लूज कर देते हैं जब बाहर ठंड होती है। तो उनको काफी एनर्जी का एक्सपेंडिचर उनका होता है ताकि वो हीट जनरेट कर सकें थ्रू मेटाबॉलिज्म। दिस इज द मेन रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इसीलिए वो अपनी बॉडी हीट को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं।
बॉडी हीट को जल्दी लूज करेंगे तो अंदर ठंड लगने लगेगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है। दिस इज द रीजन कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन्स में कम होते हैं। ओके, नाउ यू हैव माइग्रेटर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेरली एक स्ट्रेसफुल हैबिटेट से एक बेटर एरिया में, बेटर हॉस्पिटेबल एरिया में, जो उनको हॉस्पिटल मतलब जो हॉस्पिटैलिटी उनकी कर सके, वहां चले जाते हैं, और जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है तो वो वापस अपने प्लेस पे आ जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइग्रेटर। Very common example is if someone has visited Bharatpur National Park in Rajasthan, that is also known as Keoladeo National Park, वहाँ पे every जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है नदर्न रीजन्स में, या साइबेरिया की हम बात करें, तो वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स हर विंटर में आते हैं भरतपुर नेशनल पार्क में। रीजन बीइंग, इनको बोलते हैं हम साइबेरियन क्रेन, सी इन द पिक्चर। उनका माइग्रेशन होता है क्योंकि वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस होती हैं, जिसमें वो इजी नहीं फील करते, और वो उनको स्ट्रेसफुल हैबिटेट लगता है, तो वो मोर हॉस्पिटेबल एरिया, मोर इजी एंड कंफर्टेबल फेवरेबल कंडीशंस में माइग्रेट कर जाते हैं। सो दे आर नोन एज माइग्रेटर्स। देन वी हैव सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट्स में थिक वॉल के स्पोर्स बन जाते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो इन बैक्टीरियाज, फंगीज और लोअर प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प कर सकें टू सर्वाइव। दे जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट। मतलब थिक वॉल्ड स्पोर्स बन गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? जर्मिनेट कब करा उन स्पोर्स ने? व्हेन स्ट्रेसफुल कंडीशंस गेट ओवर। So they are known as this kind of process in bacteria, fungi and lower plants, that is known as suspension. जैसे कि talking about क्लेमाइडोस्पोर्स, जो फंगी का एक क्लास है क्लेमाइडोस्पोर्स, वहां पे what happens is कि कुछ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स बन जाते हैं वहां पे, जो उसको हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने की। ऐसे ही कुछ पैरासिटिक फंगल स्पोर्स भी बनते हैं, वो भी, उनका भी सिमिलर यही काम होता है कि दे हेल्प इन सर्वाइविंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, देन यू हैव हायर प्लांट्स एंड सीड्स, जिनमें कुछ अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसी चीज का काम करते हैं, क्या कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको हेल्प कर सके। डिस्पर्जल उनका तब ना, मतलब वो डिस्पर्जल में भी हेल्प करेंगे जब पीरियड ऑफ स्ट्रेस होगा, और दे जर्मिनेट फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। और ऐसा वो क्या कैसे करते हैं? बाय गोइंग इन द स्टेट ऑफ डोरमेंसी। See the animals, hedgehog is there, hibernate कर रहा है, and then you have Galapagos turtle जिसका एस्टिवेशन हो रहा है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में तो यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग्स, कि क्या व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे बियर्स आर देयर जो विंटर के टाइम पे हाइबरनेट करते हैं। क्यों? वो मतलब एस्केप इन टाइम का एग्जाम्पल है कि जब उनको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है तो व्हाट बियर्स डू इज दे हाइबरनेट। एंड सिमिलरली समर रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, हीट एंड डेसिकेशन, उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट हैपेंस इज स्नेल्स या फिशेस जो हैं बहुत सारे, दे गो इनटू एस्टिवेशन। ठीक है, सो दीज आर टू कंडीशंस, hibernation and estivation. Other than that, I have talked about जो resistance proof जो अपने spores होते हैं, thick walled spores, वो बनते हैं। Other than that, you have a condition known as dormancy. और क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जो जू प्लैंकटॉन्स होते हैं एक्वेटिक बॉडीज में, लेक्स या पॉन्ड्स में, वो एक और कंडीशन में एंटर करते हैं जिसको स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट बोला जाता है, एंड दैट इज नोन एज डायापोज। जू प्लैंकटॉन की मैंने बात की, जू प्लैंकटॉन्स में क्या होता है? डायापोज इज अ कंडीशन दैट अकर्स एज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द 4 पॉइंट्स जिसकी वजह से एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिजम्स में, और वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। एंड नाउ वी हैव फीचर ऑफ द डे।
ऑन द अदर हैंड देन द स्लाइड, हमारे पास आज एक और दिन है, दैट इज बुद्ध पूर्णिमा, दैट इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा बुद्ध. एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फीचर ऑफ द डे इज नेशनल सीनियर हेल्थ एंड फिटनेस डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 May. The day is dedicated to the betterment of health of seniors and to acknowledge the importance of nutrition and exercise for the prevention of ill health of seniors. आपके seniors, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनका आप ख्याल रखें, उनकी हेल्थ की अच्छी देखभाल की कोशिश करें, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइजेज वो कर सकें, सो दैट दे वुड बी हैविंग अ happy, healthy and long life. Okay, we are done.